dear learners, I am Dr. Pushkar Dubey, Assistant Professor and Head, Department of Management, Pandit Sundarlal Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. I welcome you all to this video lecture session on Introduction to Marketing. Dear students, the learning objectives of today's session will be a complete understanding to Introduction of Marketing. At the end of this session, we will be able to understand the different elements of marketing. We will be knowing the different concepts and meaning of marketing. We will be able to differentiate between marketing and the selling concept, and we will be able to define the objectives and functions of marketing. In the words of Robert Louis Stevenson, everyone lives by selling something. The world of business has its own extensions. It was prevailing in the past, continues till date, and will live in the future times to come as well. The only thing what has changed is it has changed its form. The term marketing had its existence in the long past. However, its name and significance is continuously evolving and changing. In ancient time, there were system of barter where people used to exchange goods with other goods. It was that time frame where the concept of money transactions were not evolved. With the growing human civilization, people started realizing the essentials of transaction, and exchange of goods with money worth came into force. जब हम previously barter system में थे, तब goods से goods को exchange किए जाते थे. आज हम 21st सेंचुरी में स्टेप डाउन कर चुके हैं, जहां की सारे ट्रांजेक्शन्स इंटरनेट के द्वारा किया जाता है. हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं. ऑल वर्दी ट्रांजेक्शन जो ह्यूमन बींग्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग का देन है. मॉडर्न डे बिजनेस हैज ग्रोन डायनामिक विथ रेफरेंस टू दिस टाइम फ्रेम, एंड मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी एट लार्ज. Dear students, before knowing the different concepts of marketing, its definition, let us understand what are the different elements involved in marketing. Marketing always starts when there is either a need, want or demand. This need, want or demand, it is for a particular product. Although these three words appears to be similar in nature, but they are different in their approach. Need is the basic necessity of a human being which is essential for survival. Take for example, need for food, need for clothes, need for shelter. Need एक basic necessity है, आवश्यकता है human beings के लिए जिसके बिना human survive नहीं कर सकते. Wants on the other hand, it is the extra satisfier of need. जब आवश्यकता को extra head में हम satisfy करते हैं, तो उसे वांट कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, वांट्स आर इन एक्सेस टू द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लेट अस टेक वन एग्जांपल. इफ यू नीड टू प्लान योर जर्नी फ्रॉम योर होम टू ऑफिस, you need a motorbike. Your need is a motorbike, but the same you can do with the help of a car. So, need is motorbike and want is car. Thus, the extra satisfier of need, it is a car. On contrary, demand of a commodity can be explained by two means. First, willingness to purchase, and second, ability to pay. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में हम बात करते हैं, तो दो एसेंशियल क्राइटेरिया मीट होने जरूरी हैं. फर्स्ट, विलिंगनेस टू परचेस, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. एंड सेकेंड, वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू पे, हमारे पास खरीदने की परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. Thus, in order to satisfy the demand, one must be keen to have a purchase and should have monetary power to support the same. Let us take one example for that. If you want to purchase an Audi car, your need must be fulfilled in terms of demand by meeting two different criteria.
आपके खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए, और सेकेंडली आपके खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये दो क्राइटेरिया जब फुलफिल होते हैं तभी हम डिमांड फॉर ए कमोडिटी को मीट कर सकते हैं। नाउ वंस वी आइडेंटिफाई द नीड, वांट्स एंड डिमांड, द नीड, वांट एंड डिमांड, इट इज फॉर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिसे हम वस्तु कहते हैं, प्रोडक्ट इज अ टैंजिबल और इनटैंजिबल एंटिटी विच हैज यूटिलिटी फंक्शन। दे आर द satisfier of need, want or demand of a consumer. It may take in the form of goods, services or ideas. Goods are tangible, whereas services and ideas are intangible in nature. एक प्रोडक्ट या वस्तु की जब हम बात करते हैं तो वस्तु या प्रोडक्ट की दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टैंजिबल, दूसरा इनटैंजिबल। टैंजिबल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट का जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मेरे पास अगर कोई भौतिक वस्तु है जैसे पेन, पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, जिसको मैं छू सकता हूं, वो टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट है जिसे गुड्स कहा जाता है। इनटैंजिबिलिटी सर्विस से एसोसिएटेड होते हैं, जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, रादर उसको फील किया जा सकता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर आप कहीं घूमने टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वहां आपको कोई भौतिक वस्तु या प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि आप इनटैंजिबिलिटी को सिर्फ फील करते हैं, आप उस पर्टिकुलर जगह को एंजॉय करते हैं। सो दीज आर सर्विसेस। देयर आर सम गुड्स which are offered with an attachment to a service for providing more value to the customers. Say for example, sales of a motorbike involves 3 to 5 warranty services which are given free as an attachment to a product sale. कुछ वस्तु या कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो भौतिक होते हैं और उसमें सर्विस मैन्युफैक्चरर द्वारा अटैच करके सेल्स किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक मोटर बाइक परचेस करते हैं तो हमें 3 से 5 वारंटी फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये आफ्टर सेल सर्विस का एक पार्ट होते हैं। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड द नीड, वांट्स एंड डिमांड ऑफ अ कस्टमर। वी हैव गॉट अ प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज। नाउ दीज प्रोडक्ट्स, इट इज एसोसिएटेड विथ सम अमाउंट ऑफ वैल्यू, cost and satisfaction. Value is customer estimates of a product overall capacity to satisfy his or her need, whereas cost is related to the price of a product and satisfaction is related to utility. Every product is associated with certain value, cost and satisfaction. अगर हम एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो 3 फैक्टर्स उससे एसोसिएटेड होके रहते हैं। फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड कॉस्ट और तीसरा सेटिस्फेक्शन। वैल्यू की अगर हम बात करें तो यह प्रोडक्ट की ओवरऑल कैपेसिटी को डिफाइन करता है, जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर कस्टमर या ग्राहक सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड फील करता है। कॉस्ट हमेशा प्राइस से रिलेटेड होते हैं। हम डेफिनेटली अगर बाजार में जाते हैं तो प्राइस देख के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। एंड विद दिस वैल्यू एंड प्राइस, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। इफ आई नीड टू चूज बिटवीन फैन एंड एन एयर कंडीशन, ऑल दिस 3 फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। अगर डियर लर्नर्स, अगर मैं चाहूं कि फैन और एयर कंडीशन के बीच मुझे कुछ चूज करना है तो मैं देखूंगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितने हैं, एंड आउट ऑफ दिस वैल्यू एंड कॉस्ट मुझे कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। नाउ product is associated with value, cost and satisfaction. Once this value, cost and satisfaction is identified, we used to have exchange and transaction. Exchange and transaction are very essential steps which helps to exchange the product, thereby creating a sort of transaction on the part of mutual benefit. Exchange is an act of obtaining desired product from someone by offering something in return. A transaction on the other hand is a trade of value between 2 or more different parties. अगर हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो गुड्स के बदले मनी वर्थ में
कोई चीज हम एक्सचेंज करें बाजार में जाके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अगर हम साइमल्टेनियसली मनी वर्थ दे के गुड्स मिल जाते हैं हमें, तो दैट बिकम्स ट्रांजेक्शन। सो एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन मार्केटिंग के बहुत की एलिमेंट्स हैं, विदाउट विच मार्केटिंग नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। In the lieu of transaction made, the marketer establishes a sort of relationship between key parties involved in the transaction process, which may include customers, suppliers, and distributors. A marketing network consists of companies supporting stakeholders like customers, employees, suppliers, distributors, retailers, and agencies. ये जो वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन की हमने बात की, जब ये एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में होता है तो रिलेशनशिप एंड नेटवर्क डेवलप करते हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सेल करते हैं या होलसेलर को सेल करते हैं, होलसेलर रिटेलर को सेल करते हैं, एंड रिटेलर फाइनली अल्टीमेट कस्टमर को सेल करते हैं। ये पर्टिकुलर चेन के द्वारा एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और नेटवर्क की फॉर्मेशन होती है, जो मार्केटिंग के एक एसेंशियल भाग है। Now all this we are talking about, it takes place in a market. जो भी हमने बात की, रिलेशनशिप फॉर्मेशन की, नेटवर्क फॉर्मेशन की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, ट्रांजैक्शन की, एक्सचेंज की, वैल्यू एडिशन की, all this takes place in a particular market, and market can be defined as it is a place where a buyers and seller meets to have a process of exchange in order to satisfy their need and want. This is a place where the exchange of product take place. Market वो जगह है जहां की एक बायर और सेलर मीट करते हैं to have an exchange, और ये exchange products के लिए होता है जिससे कि हम अपनी या कस्टमर अपनी satisfaction of need को प्राप्त कर सकते हैं। Again, it is essential to understand what is marketer and who are the prospect. A marketer is someone looking for one or more prospect who can take on the exchange of value. A prospect is someone whom the marketer identifies as a potentially eager and able to engage in exchange of values. हमेशा एक मार्केटर प्रोस्पेक्ट की तलाश में रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केटिंग कंपनीज या मार्केटिंग कंपनीज के एजेंट कस्टमर की तलाश में होते हैं। प्रोस्पेक्ट्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो होते हैं जो भविष्य में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी हैव एनालाइज्ड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग, लेट अस डिफाइन व्हाट इज मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational goals. As a part of managerial definition, marketing has often been described as an art of selling the product. Marketing वो element है जिसमें planning involved है, execution involved है, promotion involved है, distribution involved है, goods involved है, services involved है, एंड ऑल दिस थिंग्स जिससे कि हम एक एक्सचेंज को क्रिएट कर सके ताकि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेटिस्फाई किया जा सके। एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें मार्केटिंग को, तो मार्केटिंग एक आर्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट है जिससे प्रोडक्ट को अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर के हैंड से कस्टमर के हैंड तक पहुंचाया जाता है। इन अनदर डेफिनेशन, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that directs the flow of goods and services from the hands of producer to the hands of ultimate user or consumer. Marketing can also be defined as social process by which individual and group obtain what they need and want through creating, exchanging products of values with others. मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस के रूप में डिफाइन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिससे कि इंडिविजुअल के नीड्स और वांट्स को फुलफिल किया जाता है। कैसे फुलफिल किया जाता है? उनको हम प्रोडक्ट की ऑफरिंग देते हैं, उस प्रोडक्ट्स के साथ उनको वैल्यू मिलता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ये सारी चीजें एक्सचेंज के माध्यम से एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में होती है।
Dear learners, now let us differentiate between what is marketing and selling. हमने ऑफन सुना होगा कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है, सेलिंग भी एक दूसरा प्रोसेस है. In many instances, we used to consider marketing and selling as a similar entity. But in reality, this marketing and selling, these are two different concepts. Let us, dear learners, let us try and understand what is the basic difference between marketing and selling. The first point of difference between marketing and selling is the origin point. The origin of marketing process is always a buyer, whereas the origin of selling process is always a seller. Marketing हमेशा एक buyer से originate होते हैं, but selling की प्रक्रिया हमेशा एक seller से start होता है. The second point of difference is marketing always focuses on buyers' needs and wants, whereas selling concentrate on sellers' needs and want. जब हम बात करते हैं needs और wants की, जो कि elements of marketing में हमने देखा, तो buyers के needs and wants को जो identify करते हैं, जो प्रक्रिया, उसको हम marketing कहते हैं, and selling वो प्रक्रिया है जिसमें sellers की needs और wants को देखा जाता है. As a point of third differentiation, marketing aims to convert customers' need into a product, whereas selling aims at converting the existing product into a money. जब हम बात करते हैं कस्टमर नीड्स की, कस्टमर वांट्स की, तो ये फलक्रम पॉइंट होता है कि कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करते हुए मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है. लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता. सेलिंग में पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड देन फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू अर्न मनी. एज अ फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मार्केटिंग आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ गिवन मार्केट, whereas selling aims in maximizing product sales. मार्केटिंग सदैव आइडेंटिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी जो कि एक प्रोडक्ट के लिए गिवन मार्केट में होते हैं, लेकिन सेलिंग हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को ही टारगेट करके चलते हैं. एज अ फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मार्केटिंग कैन बी व्यूड एज अ बिजनेस प्रोसेस which emphasizes more on customer satisfaction. In other words, marketing is a customer oriented process, whereas selling is a kind of business process which emphasizes more on production of goods. That means it is a production oriented process. मार्केटिंग हमेशा एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है इसे, क्योंकि ये कस्टमर के नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को फोकस करते हैं, जबकि सेलिंग एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को वैल्यू दिया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन को फोकस किया जाता है. एज अ सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मार्केटर्स डिटरमाइन द मार्केटिंग मिक्स as per the suitability of customers, whereas in the process of selling it is purely determined by the seller of the goods. मार्केटिंग के प्रोसेस को मार्केटर मार्केटिंग नीड्स को आधारित करते हुए, मार्केटिंग मिक्स को इन्वॉल्व करते हुए सुइटेबिलिटी ऑफ कस्टमर के रूप में उसको डिफाइन किया जाता है. लेकिन सेलिंग प्रोसेस में सेलर ऑफ गुड, जो सेलर होता है, उसको प्राइम फोकस में रखते हुए सेलिंग के एंटायर प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है. एज अ सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, प्राइस फिक्सेशन इज डिपेंडेंट फैक्टर ऑन मार्केटिंग कंडीशन, whereas price fixation is done on the basis of production cost on selling. सेलिंग में जब हम प्रोडक्ट की प्राइस फिक्सेशन करते हैं तो वो प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के कॉस्ट पर आधारित होते हैं, लेकिन मार्केटिंग में प्राइस फिक्सेशन मार्केटिंग कंडीशंस को बेस्ड करके किया जाता है. से फॉर एग्जांपल कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग डिमांड, ये सभी चीजों को, फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखा जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में. एज एन एट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, business activities involving different departments are well integrated to each other in the concept of marketing, whereas business activities involving different departments used to act independently and are feeble or unorganized in selling. मार्केटिंग में सारे डिपार्टमेंट्स जो एक दूसरे के पूरक होकर कार्य करती है वो वेल इंटीग्रेटेड होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं
वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल मैनेज्ड होते हैं। बट सेलिंग डिपार्टमेंट्स ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होता। इसीलिए सेलिंग एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मार्केटिंग को एक इंटीग्रेटेड व्यू में देखा जा सकता है। एज अ 9th पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद अ कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, whereas selling starts with production and ends with customers। मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं कि ये कस्टमर को स्टार्ट होके कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एंड होते हैं, लेकिन सेलिंग प्रोडक्शन में स्टार्ट होके ये कस्टमर तक जाते हैं। एज अ 10th पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मार्केटिंग इज प्योरली ऑन सर्विस बेसिस, like it involves guarantee, warranty. Selling does not involve guarantee or warranty of services. उदाहरण के तौर पर अगर आप एक वॉच खरीदते हैं किसी भी स्टोर से और वह 1 साल या 2 साल के अंदर जब वारंटी या गारंटी कवरेज होता है तो खराब हो जाने की दशा में आप जाके उसे रिपेयर या रिप्लेस करा सकते हैं, बिकॉज इट इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन सेलिंग ऐसा कोई भी आपको गारंटी या वारंटी प्रोडक्ट ऑफरिंग के ऊपर नहीं प्रोवाइड करता। एज अ 11th पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेलिंग, whereas selling is a very narrowly defined concept। मार्केटिंग एक व्यापक या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेलिंग एक नैरोली डिफाइंड कॉन्सेप्ट है जिसको कि आइसोलेशन में डिफाइन किया जा सकता है। एज अ 12th पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, selling can be considered as a part of marketing, but marketing cannot be regarded as a part of selling, क्योंकि selling एक narrowly defined concept है। ये marketing का एक part हो सकता है, लेकिन marketing क्योंकि ये broader concept है, it cannot be regarded as an entire part of selling। These are the basic differences between what is marketing and what is selling। So in this video lecture, we have learnt on different elements of marketing, starting from need, want and demand of the customer। We have understood what are the basic elements of marketing, what is the definition of marketing, and we have also understood what is the basic difference between marketing and selling। So until next video, dear learners, stay tuned. Thank you very much.